Hadia Firdaus, studying in Qaisar Children Academy. If you want to learn basics about political science and also needs preparation for competitive exams, you need to come to this channel. So subscribe my Baba's channel, BS Political Science. Subscribe it, like it, and do not forget to press the bell icon. Welcome class. Today we are going to discuss another form of government, that is presidential form of government or presidential government. And in this lecture we will discuss the nature of this important form of government, its organization, its merits, and then demerits would be explored. So without wasting our time, let's start. Let's start from its nature, that by its nature. In the very first bullet, I have mentioned that executive and legislative department, they are separated and different persons or body of persons, suppose President and Congress. It means that a presidential system of government is one in which the executive and the legislative department, they are separated, they are distinctly separate, and different persons or body of persons, like namely the president and the Congress respectively, in different systems with respect to their functions. So executive was the headed by executive department, headed by normally president and the presidential system, and legislature was normally by the Congress, and so it is called congressional system. So I'm going to repeat this, that the executive organ of the government is headed by the president, and it is called it is called what? It is called, this one important, presidential system. And the second one is a legislature. Legislature is usually known as Congress, and it is also called by name Congress, congressional system. So नीचे मैंने लिखा हुआ है irresponsible system of government. Irresponsible यानी किस तरह से, as the president and his ministers are not responsible to the legislature or the Congress for their acts and policies and duties, so it is called the irresponsible system of government. ये इसका drawback है, separation of power है, यानी separation of power यानी किस तरह से कि इख्तियारात, यानी एक अपना काम कर रहा है, दूसरा अपना काम कर रहा है, इस तरह से the executive power is vested in the president और legislative power definitely वो कांग्रेस के पास होती है. और नीचे मैंने लिखा हुआ है कि each one is supreme, हर एक अपने अपने दायराकार में पावरफुल है और इंडिपेंडेंट भी है, अपने सफ़े और अपने दायरा अख्तियार में, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर. यानी ये प्रिंसिपल है कि यूनिटी और स्ट्रेंथ पर भी करता है, उसकी वीकनेसेस को भी शो करता है, उसकी स्ट्रेंथ को भी शो करता है. नीचे मैंने लिखा ना यूनिटी और स्ट्रेंथ, इसको हम आगे क्रिटिकली डिस्कस करेंगे. नेचर में यहाँ नहीं करते, नेचर में यही चीज़ें आप इनमें मेंशन कर लेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट जो है वो इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है. इसकी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो है वो आपके पास आ रहा है जी प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द नॉमिनल एंड द रियल एग्जेक्टिव एंड द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जबकि पार्लियामेंट्री में डिफरेंट होता है. ठीक है, पार्लियामेंट्री में द प्रेसिडेंशियल को हम ये कह सकते हैं कि इट इज एट वंस द हेड ऑफ द स्टेट भी है और चीफ एग्जेक्टिव भी है. ठीक है ना, एग्जेक्टिव हेयर, रियल एंड नॉमिनल एग्जेक्टिव हेयर इन दिस सिस्टम, और ज़्यादा पावरफुल होता है प्राइम मिनिस्टर से. ठीक है, यानी कैबिनेट सिस्टम के उससे ज़्यादा पावरफुल होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के उससे. यानी इसे हम कह सकते हैं कि ही इज़ द रियल एग्जेक्टिव.
He is the real executive with immense powers, untrammeled by a cabinet or legislative criticism. यानी इससे हम ये भी कह सकते हैं कि सिंगल या सॉलिटरी एग्जेक्टिव, यानी ये मैंने लिखा हुआ सिंगल या सॉलिटरी एग्जेक्टिव है। और क्यों इसे पावर मिली हुई है? बाय कॉन्स्टिट्यूशन मिली हुई है, किसी की वजह से नहीं मिली हुई, बाय कॉन्स्टिट्यूशन मिली हुई, जिस तरह के अमेरिकन प्रेसिडेंट। लेकिन इसमें ये भी नहीं है कि ये इतना बाख्तियार है। सिस्टम में कुछ चेक्स, इसकी पावर के ऊपर कुछ चेक्स रखी हुई हैं, यानी फ्यू चेक्स ऑन हिज पावर। सो एक और नॉट रिस्पांसिबल टू हिज लेजिस्लेचर, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर अपनी लेजिस्लेचर को उसकी वो होते हैं रिस्पांसिबल, ये नहीं होता है। ठीक है जी, इसके ऊपर चेक्स भी हैं, इतना इसको वो भी नहीं छोड़ा गया है। इसकी एग्जांपल भी आगे देंगे। और इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड, यानी जैसे अमेरिका का सदर 4 साल के लिए है तो 4 साल के लिए इसको इलेक्ट किया गया है, यानी इसका टाइम पीरियड जो है वो मेंशन्ड होता है प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से। प्रेसिडेंट के बाद चलते हैं जी उसकी मिनिस्टर्स की तरफ। उसके मिनिस्टर्स क्या होते हैं? द प्रेसिडेंट जो है वो ही इज सॉलिडली इन द चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, अपना एग्जीक्यूटिव, और वो अपॉइंट करता है अपने पर्सन्स को अपने वेरियस एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स के लिए करता है। सेक्रेटरीज और नॉर्मली सेक्रेटरीज या मिनिस्टर्स होते हैं ये, ठीक है, सेक्रेटरीज या मिनिस्टर्स होते हैं। इस तरह से the body of the ministers of the president cannot be called the cabinet, like the cabinet system में तो उनको हम कैबिनेट या काबीना कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। और it is a, यानी ये टर्म का उन्होंने मिसयूज किया हुआ है अमेरिका व अमेरिकन लाइक के प्रेसिडेंट की उनकी कैबिनेट है, लेकिन कैबिनेट नहीं हो सकती। क्यों? कि मिनिस्टर्स आर नॉट हिज कोलीग्स बट और हिज नॉमिनीज। मिनिस्टर्स उसके कोलीग नहीं है, जबकि कैबिनेट में वो प्राइम मिनिस्टर के कोलीग होते हैं, ये तो इसके नॉमिनी है होते हैं, और नॉट बाउंड बाय देयर एडवाइस। और ये जो प्रेसिडेंट होता है वो इन मिनिस्टर्स की एडवाइस का, मशवरे का पाबंद भी नहीं है। ठीक है, विद द एंड ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस दे मस्ट गो आउट ऑफ हिज ऑफिस, यानी जब उसकी टर्म जब उसकी मुद्दत हो जाती है तो इनको भी इनकी मुद्दत भी, यानी इनका टाइम पीरियड भी ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, यानी इन्हें भी जो है वो जाना पड़ता है। ठीक है, होल पार्टी का वो नहीं है जिस तरह के लेजिस्लेचर है, और इस तरह से सॉरी पार्लियामेंट में सिस्टम इस तरह से होता है। ठीक है, मिनिस्टर्स के बाद आते हैं जी हम कांग्रेस की तरफ, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा टीयर, और कांग्रेस जो है इसे यानी हम कह सकते हैं कि this is the legislature of the presidential system, यानी कांग्रेस यानी लेजिस्लेचर है प्रेसिडेंशियल की, और इसके पास क्या है? ऑल लेजिस्लेटिव और मनी ग्रांटिंग पावर्स होती है, लेकिन पार्लियामेंट की तरह नहीं। इट इज नॉट द सुप्रीम और सॉवरेन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। इसके दो हाउसेस होते हैं, यहाँ मैंने किया हुआ है, एक सेनेट है और एक अमेरिका के अगर उसकी बात करें तो एक सेनेट है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। ये अपर हाउस है, ये लोअर हाउस है। जिस तरह पाकिस्तान में आपका सेनेट है और नेशनल असेंबली है, और हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉ डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट पावर का तरीकाकार है। ठीक है जी, इसके अलावा सेनेट के पास क्या है? द सेनेट इज गिविंग द पावर ऑफ चेकिंग द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी सदर को कोई काम करना होता है तो वो सेनेट से उसको एक खास उन्होंने रखी होती है मेजॉरिटी, हमारे यहाँ 2/3 है इस तरह से, और उनके यहाँ भी एक तरीकाकार है जिसमें उसको उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। जब वो रेटिफाई करते हैं तो उसके बाद वो कोई काम, जैसे अगर ट्रीटी साइन करनी है तो वो सेनेट से पास होनी होगी। इसी तरह से ये भी नहीं है कि सेनेट को खुला छोड़ दिया गया है, सेनेट कोई काम करेगी तो सदर का कंसेंट लाजमी है, सदर का इस तरह उसको वोट ऑफ उसका वीटो पावर है, उसकी वोट की, उसका साइन होना लाजमी है। तो ये दोनों को, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ मैंने लिखा चेक एंड बैलेंस सिस्टम। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम होता है चेक्स एंड बैलेंसेस का, जिसमें कि हार्मनी रहती है कामों के एतबार से, और एक अच्छे तरीके से एक कॉन्फिडेंस के साथ, नो कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं पेश आती, और अच्छे तरीके से काम हो रहा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी में इसके मेरिट्स की तरफ और इसके डीमेरिट्स की तरफ। बात तो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इसको शार्ट ही रखूंगा, आप इसमें खुद डिटेल कर लेना है। नंबर 1 मेरिट मैंने लिखा हुआ है, इट सिक्योर स्टेबल गवर्नमेंट, यानी जाहिर सी बात है आपने ख़ास मदद के लिए हुकूमत को चुना है तो
वो उसका एक टाइम पीरियड मिनिस्टर्स का रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो टाइम पीरियड उसका मेंशन होता है और वो एक सिक्योर सी उसमें स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी और ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं कामों के एतबार से भी उसमें। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, यानी जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें आपकी कंटिन्यूटी नज़र आती है और वो यानी लोगों को भी एतमाद रहता है और कोई ब्रेक इन टर्म्स ऑफ ऑफिस नहीं होता है और वो विगरसली विदाउट कांस्टेंट फियर ऑफ लूजिंग मेजॉरिटी और लेजिस्लेचर में जिस तरह के पार्लियामेंट्स में होता है वो उसके बगैर ये काम कर रहे होते हैं और इसी तरह से वोट के शिफ्टिंग का कोई डर नहीं होता है और नॉन कॉन्फिडेंस का कोई डर नहीं होता है जिस तरह के कैबिनेट सिस्टम में न्यू इलेक्शन का डर होता है नॉन कॉन्फिडेंस का डर होता है तो यहाँ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होती है जो कि ये सारी चीज़ें उनकी पॉलिसी को कंटिन्यूटी में हेल्प करती हैं ठीक है। अच्छा, इट इंश्योर्स सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी, वही बात कि यानी ये एडवांटेज है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी आल्सो गारंटीज इट्स सर्टेनिटी, यानी एक सर्टन होगा ये चीज़ होगी और जाहिर सी बात है एग्जेक्टिव पावर्स किसके पास होती हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, डेफिनेटली प्रेसिडेंट के पास होती हैं और वो उसको हम सॉलिटरी एग्जेक्टिव भी कहते हैं। वो अपने खुद मिनिस्टर्स को खुद ही चूज करता है और फिर उनके लिए पॉलिसी डिटरमिन कर दी जाती हैं और कोई काम करना होता है तो अपने मिनिस्टर से और एडवाइजर से मशवरा लेता है लेकिन वो उनके मशवरे का एडवाइस का बाउंड नहीं होता है। सो देयर इज नो डिवाइडेड ओपिनियन नहीं है, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ काउंसिल नहीं होती है इस तरह से, नो डाइवर्सिटी ऑफ काउंसिल। कैबिनेट जिस तरह के कैबिनेट सिस्टम में होता है और बात लंबी हो जाती है और बात सालों तक चली जाती है, ठीक है। सो टाइम्स ऑफ वार और क्राइसिस मैंने नीचे भी मेंशन किया हुआ है कि वो इसमें बड़ा वो रहता है। फिर आगे है जी, इट कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स, जाहिर सी बात है कोई मसला हो तो उसको एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, उसको अपने यानी एडवांटेजेस इस तरह के एक्सपर्ट कोई सिलेक्ट करता है तो जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं मिनिस्टर्स को सेक्रेटरीज को पार्टी की एफिलिएशन पर नहीं कर रहा होता है लेकिन बल्कि उनकी पर्सनल मेरिट और क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर सदर उनका इंतखाब कर रहा होता है तो वो बड़े एक्सपर्ट और बड़े इस तरह के लोग होते हैं। इसी तरह से इट इज़ फ्री फ्रॉम पार्टी स्पिरिट, जाहिर सी बात है पार्टी स्पिरिट नहीं होगी और यानी उसको मजबूर नहीं होगा और वोट ऑफ सेंसर का वो खतरा नहीं होगा। इस तरह से नो वोट ऑफ एडजर्नमेंट, ये चीज़ें मैंने सेमेस्टर 1 में भी आपको एक्सप्लेन की हुई हैं, यहाँ नीड नॉट टू डिस्कस दिस इन डिटेल। वोट ऑफ सेंसर, वोट ऑफ एडजर्नमेंट और इस तरह से एक अच्छे स्मूथ तरीके से काम हो रहा होता है। इट कैन टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन एंड एक्शन, जब भी जरूरत पड़ती है, कोई बार का मसला है, कोई इस तरह की नादानी सूरत हाल है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई एग्रेसिव किस्म की इस तरह का, तो ये पॉलिसीज को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इट्स मेंबर आर नॉट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, जाहिर सी बात है वो ये खुद मर्जी से लेते हैं तो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेजिस्लेचर इज लेस डोमिनेटेड बाय पार्टी स्पिरिट, यहाँ पर नहीं होता है कि वो मजबूर हो पार्टी का, ठीक है। आगे इसके डीमेरिट्स की बात करेंगे। डीमेरिट्स में मैंने लिखा हुआ है इट बेस्ड ऑन रॉन्ग प्रिंसिपल्स, यानी जब हमने उसकी खूबियां गिरदानी है तो यहाँ हम इसकी खामियों की बात करेंगे। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ पावर इन द सिस्टम्स ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। तो फ्रेमर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उन्होंने फेल्ड किया दैट गवर्नमेंटल पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन, यानी एक या सदर को ही ना अख्तियार करें या सेनेट को ही अख्तियार ना करें बल्कि हम इख्तियारात को दो हिस्सों में तकसीम कर दें। सो उन्होंने क्या कर दिया, इस तरह करने से उन्होंने सेपरेट कर दिया एग्जेक्टिव को लेजिस्लेचर से और एंड इंटरेस्टेड एग्जेक्टिव पावर टू द प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर पावर टू द कांग्रेस को दे दी। Then they were assailed by a new fear, उनको खतरा ये हुआ कि they had concentrated all executive power in the, तमाम की तमाम executive power उन्होंने सदर को दे दी और तमाम की तमाम legislative power उन्होंने किसको दे दी, ऐसा करते हुए कांग्रेस को दे दी। executive power सदर और legislative powers कांग्रेस को मिल गई यानी respectively. So they sought to limit and control the concentration of power of a system of checks and balance. So this aggravated the evils that they sought to prevent. और separation of power जो है वो wrong, इस तरह से कि defective principle of organizing a government, यानी इससे क्या होता है कि indivisible है और system of checks and balance से confounded matters और अब भी नहीं हो रहे, injurious administrative efficiency के रास्ते में
और इंटीग्रेटेड नहीं है। कैबिनेट सिस्टम तो एक उससे कर रही होती है और किसी भी मसले पर एक ही होते हैं और डेडलॉक वहाँ नहीं हो रहा होता है। लेकिन यहाँ डेडलॉक यानी सदर एक बात पर अड़ गया है कि वो सेनेट ने कोई चीज़ पास की, सदर ने साइन नहीं किए, तो वो क्या हो जाएगी? वीटो हो जाएगी, सस्पेंसिव वीटो से परमानेंट वीटो हो जाएगी। ये चीज़ें आपको नेक्स्ट किसी क्लास में डिस्कस करूँगा मैं। अच्छा, इट एनकरेजेस ऑटोक्रेसी, सदर के पास जो आपने वो कर दिया है तो वो ऑटोक्रेट भी बन जाता है। टेंड्स टू बी यानी गार्नर कहता है ना ऑटोक्रेट इर्रेस्पॉन्सिबल एंड डेंजरस है। ऑटोक्रेटिक है क्योंकि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आपने किसी को दे दिए, प्रेसिडेंट को दे दिए, वो अपनी मर्जी से उनको वो करेगा और वो अपनी मर्जी से अब उसके 4 साल की मुद्दत मुद्दत जो है वो उसने पूरी करनी है, तो वो वहाँ पर कुछ भी कर सकता है। और सेपरेशन ऑफ पावर इट इज़ मैं कह रहा हूँ इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर। अब वो अपने-अपने दायरे में काम कर लें। लेकिन आप देखें कैबिनेट सिस्टम जो है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है द प्रेसिडेंट इज़ नॉट आंसरेबल for his acts and policies to the legislature। वहाँ पर वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर है only next election यानी उसको जो है वो वहाँ पर अपने उससे ओहदे से हटाएगा। So this fact makes the presidential system a dangerous होता है और डिक्टेटोरियल हो जाता है, उसको अपने ओहदे से कोई नहीं हटा रहा होता, जबकि आप पार्लियामेंट्री में उस ऑटोक्रेसी को ख़त्म भी कर सकते हैं और उस बंदे को, उस प्राइम मिनिस्टर को, उसकी पूरी मिनिस्ट्री को, उसकी पूरी कैबिनेट को आप हटा सकते हैं और नई का इंतखाब भी कर सकते हैं। इट इज़ रिजिड, दैट्स रिजिड किस तरह से है कि अपना एक पूरा मुद्दत पूरी करेगी और उसको आप फिक्स्ड पीरियड के लिए है, वही बात है, इर्रिमूवेबल है, फिक्स्ड पीरियड है और जो स्टैट्यूट टर्म्स हैं उसके मुताबिक उसको स्पेसिफाइड, रिजिड और इस तरह से आपके कामों के हवाले से तो ठीक है, लेकिन अगर एक बुरा आदमी आ गया है तो वो उसको 4 साल तक के लिए वो आपके यहाँ रहेगा। फिर लिखा हुआ है कि इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में डेडलॉक और सेपरेशन ऑफ पावर है तो नॉन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम लीड्स टू वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेडलॉक्स हो सकते हैं। सो व्हेन द प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू वन पार्टी हो, लेजिस्लेचर दूसरी पार्टी से हो, तो दोनों में बात नहीं बनेगी और डेडलॉक की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी। इट लीव्स टू मच टू द प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर आपने दे दी है। प्रेसिडेंट को यानी डिवाइस सेफ्टी rather than speed यानी everything in it goes to यानी कैलेंडर but leads to a new यानी weaknesses। presidential system से लॉर्ड ब्राइस कहता है कि leaves no more to chance than does the parliamentary। A prime minister is only one out of the cabinet and his colleagues may keep him straight and supply qualities wanting to him यानी कैबिनेट सिस्टम जो है वो ठीक रनिंग में जा रहा होता है और उसकी मशवरे के मुताबिक सारी चीज़ें कैरेक्टर के मुताबिक एवरीथिंग वहाँ पर होती है। यहाँ पर इसकी इंडिविजुअल चॉइस होती है, यहाँ पार्टी वाली चीज़ें नहीं है, तो ये यहाँ पर इसकी ऑटोक्रेसी या इसका प्रेसिडेंट के ऊपर सारा इंहिसार बनता रहता है। फिर इट प्रोड्यूसेस इररिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइवलरी अमंग डिपार्टमेंट्स। ऐसे भी हो सकता है कि मुख्तलिफ महकमों के दरमियान में जाहिर सी बात है कैबिनेट सिस्टम में तो कोहेसिवनेस है, यहाँ तो वो चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर राइवलरी उनके अंदर डेडलॉक और राइवलरी जैसे पाकिस्तान की बात करें तो जैसे नैब कुछ और कर रही है वो और कुछ कर रहे होते तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सी बनती रहती है, पार्टी के लिए गवर्नमेंट के वो कम हो रही होती है। लैक ऑफ हार्मनी या कोऑपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक्सप्लेन हो चुका, ठीक है। ये बहुत कुछ और बहुत सी चीज़ें आप इसमें खुद से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।